Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Last two lectures we have been talking about numerical differentiation, during which we developed first a technique or tool using which we can obtain approximate values for the derivative of an unknown function, which is described by a set of data, and the data set is unequally spaced. And for unequally spaced, from the previous chapter of interpolation, we have divided difference interpolating polynomial, which is basically a function of x, and we take derivative with respect to x. So we, to develop the technique of differentiation, approximate value of derivative, we take the derivative of this polynomial and then use that derivative to find an estimate of derivative of the unknown function at a given point. So we consider the interpolating polynomial, its possible error, and then demonstrated how the derivative formula from the interpolating polynomial formula is developed by taking term-by-term derivatives of each of the term involved in the interpolating polynomial formula. And then we put them all into a single formula. This was the ultimate formula for the derivative, which is in fact the derivative of interpolating polynomial plus the derivative of the error term. We have not been giving much emphasis on the error term, but from this term to this term, it is just the derivative of the interpolating polynomial of nth degree. Then we demonstrated that if we evaluate derivative at the point which is the starting point of the interpolating polynomial, that is x naught, तो इसमें जहाँ जहाँ x minus xi है, उन सब जगह x की जगह अगर आप x naught रखते हैं, so lots of term will cancel out and you will have on some simplification. So that is derivative formula for, I should put here x naught in place of this x. I should put x naught because now we are taking derivative at x naught. So derivative at x naught comes out to be this expression, and we then demonstrated, consider an example in which the function is known. We know the derivative of that function, and at particular value of x, that is 4.1, this derivative function has value 5.2. And then we consider a data developed from this function. For x is equal to 0, this will give you 4. For x is equal to 2, it will give you 2, and so on and so forth. And in this example, we are being asked that using the derivative formula up to third order. That means ये जो derivative formula है, इसमें first order, second order, third order, इस यहाँ तक हम इस्तेमाल करेंगे. Now, third order derivative formula involves, in fact, third order derivative formula involves, in fact, four
these terms, y first order, y second order, x naught minus x1, y third order, x naught minus x1, x naught minus x2. So we note that x की values x naught, x1 और x2 इस्तेमाल हो रही हैं. So तीन वैल्यू इस्तेमाल हो रही हैं. हमने जिस पॉइंट पर एस्टिमेट निकाला है 4.1 है. 4.1 जो है इन दो नंबर्स के दरमियान है. तो वी हैव टू यूज 3 पॉइंट्स. तो हमने 3 पॉइंट्स इस्तेमाल किए और इन 3 पॉइंट से बनने वाले डिवाइडेड डिफरेंसेस इस्तेमाल किए. एंड देन वी सब्स्टिट्यूटेड दीज रिजल्ट्स into the formula of third order derivative. This is the detail of the formula for the third order derivative. Estimated value, of course, this is it's only estimated value. So we see that we get the exact value जो कि actual function में derivative लेकर x is equal to 4.1 रखने से 5.2 आ रहा था. तो exactly वही value आई है. This is only because we have we have a very simplified problem. It is only coincidence. अगर मेरे पास ये डेटा किसी थर्ड डिग्री पोलिनोमियल से आता तो मेरे पास डिवाइडेड डिफरेंस थर्ड ऑर्डर का जो है वो जीरो नहीं होता. तो वो जीरो हो गया जिसकी वजह से हमारे पास एग्जैक्ट रिजल्ट आ गया. Then we moved on and considered what we will do when we have equally spaced data. So we started with the forward difference interpolating polynomial, which is a function of s, not a function of x. तो जाहिर है कि जब हम इक्वली स्पेस डेटा के लिए इंटरप्रेटिंग पोलिनोमियल कंसीडर करते हैं तो उसमें पहले एक s निकालते हैं, विच इज डिफाइंड एज जिस पॉइंट पे मैं एस्टिमेट निकाल रहा हूँ x माइनस द स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से कि मैं डेटा कंसीडर करूँगा डिवाइडेड बाय स्टेप साइज. इक्वली स्टेप स्पेस डेटा जो है उसमें स्टेप साइज कांस्टेंट होता है, यानी कंसेक्यूटिव एक्स वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस h, which is given here. So from d by dx of any function, you have to go to d by dx of that function. तो आपको change of variable करने के लिए calculus की help लेनी पड़ेगी, and that makes derivative with respect to x of a function of s converted into derivative with respect to s of a function of s now. तो जो polynomial that was the forward difference to polynomial written in terms as a function of s. अब इसका जब मैं डेरिवेटिव लूंगा तो अब क्या सूरत हाल आएगी. डेरिवेटिव तो विद रिस्पेक्ट टू x ले रहा हूँ, लेकिन दैट विल अल्टीमेटली चेंज टू 1/h टाइम्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s ऑफ द फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरप्रेटिंग पोलिनोमियल. फिर हमने टर्म बाय टर्म डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s ऑफ एवरी टर्म in this फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरप्रेटिंग पोलिनोमियल की हर टर्म का हमने अलग अलग डेरिवेटिव लिखा और उसको हमने फिर एक्यूमुलेट किया. हाँ, ये भी इंडिकेट कर दें कि अगर हर स्टेप पे हमने भी इंडिकेट किया कि अगर x इज इक्वल टू एक्स नॉट पे डेरिवेटिव ले रहे हैं तो इसका मतलब है s की वैल्यू जीरो होगी और उससे क्या सिंप्लीफिकेशन आएगी. That we have been mentioning all along. Ultimately, term by term differentiation के results को accumulate करके हमने d by dx of PNS, and PNS means forward difference interpreting polynomial. Derivative will involve 1/h into derivative with respect to s. तो अब PNS की हर टर्म का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू s लेके जो कुछ हमारे पास आया उसको 1/h से मल्टीप्लाई कर दिया. Now this is a formula that help us finding out an estimated value of the derivative at a given x, and if the whole formula is applied when x is equal to x naught, how it simplifies. इसलिए हमने निकाला कि आगे हमने इसको higher order derivative की टेक टूल्स डेवलप करने के लिए इस्तेमाल किया है.
So once the formula is obtained, this is the formula. Now it contains the first order forward difference, second order forward difference, third order forward difference, and every time यहाँ पे s नहीं था, यहाँ पे s into s plus minus 1 का डेरिवेटिव है, तो u into v से वो s plus s minus 1 बन गया. यहाँ s into s minus 1 into s minus 2 का डेरिवेटिव है, लिहाजा there are three terms appearing, each of product of two terms, and in fourth next order derivative, ये first order, ये second order, ये third order, this is fourth order. What happened? With so many things working on computer, मेरा equation editor जो है वो slow हो जाता है. This is a file ही बंद हो गई. Sharing stopped. यस सर, नजर आ रहा है. नहीं, वो गायब हो गई थी बीच में से. वो मैंने इक्वेशन एडिटर में चेंज करने की कोशिश की ना, तो वो मेरा लैपटॉप 4-5 साल पुराना हो गया है, थक गया है, बुढ़ा हो गया बेचारा. मेरी तरह स्लो स्लो चलता है. नहीं सर, एज लॉन्ग एज काम कर रहा है काफी है ना. नहीं, बहुत काम कर रहा है भाई. मतलब आई वाज नॉट श्योर कि मैं इतने क्लासेस ले सकूंगा इसकी मदद से. But I am seriously thinking of changing my laptop, going for a new model. Let me see. अच्छा, मैं टाइम तो लगा रहा हूँ, लेकिन आई होप यू अंडरस्टैंड कि वहाँ पर फोर्थ ऑर्डर टर्म आनी चाहिए. फिर रुक गया. क्वेश्चन एडिटर जो है वो भारी पड़ रहा है इस पे. I will upload this file after making changes on the resources of LMS. यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी ना, एक दफ़ा और ट्राई करता हूँ. हाँ, हो गया. First order difference, second order difference term, third order difference term, fourth order difference term. Fourth order difference terms के साथ वैसे इंटरनोपेडिक पोलिनोमियल में तो s, s-1, s-2, s-3 है, लेकिन जब इन चार लीनियर फंक्शंस के डेरिवेटिव लेंगे तो फिर ये चार टर्म्स बनेंगी जो यहाँ इंडिकेटेड हैं. सो दिस फार्मूला इज अप टू फोर्थ ऑर्डर. और उसके बाद हमने आर्बिट्री डेटा पे ये इस्तेमाल करने की आपको इस्तेमाल करने का तरीका बताया कि मुझे गिवन आर्बिट्री डेटा है और मुझे डेरिवेटिव एस्टिमेट निकालना है एट x = 3.3 क्यूबिक पोलिनोमियल. क्यूबिक पोलिनोमियल डेरिवेटिव अगर मैं कंसीडर करूं तो मैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाऊंगा, थर्ड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस तक जाऊंगा इन द डेरिवेटिव फार्मूला. बट बिफोर आई यूज द डेरिवेटिव फार्मूला मैंने h कैलकुलेट करना है. गिवन डेटा में h है, यस, इक्वली स्पेस डेटा है, स्क्रीन h है. स्टक है सर. स्क्रीन स्टक है. यस सर. हाई नहीं आई अभी भी. नहीं सर, वर्ड फाइल पे स्टक है मेरे ख्याल से.
आई यस सर, आ गई। ओके, ये आर्बिट्री डाटा है, यानी किसी फंक्शन से जनरेट नहीं किया, हाँ नॉन फंक्शन है, और हमसे पूछा गया है एस्टिमेट ऑफ द डेरिवेटिव एट 3.3 x इज इक्वल टू 3.3। तो एक तो हमने देखना इक्वली स्पेस डेटा है कि नहीं है। तो भाई इक्वली स्पेस डेटा है, h की वैल्यू हमने कैलकुलेट की, सुबह ही कैलकुलेट कर ली, पॉइंट h है। फिर s निकाला। s निकालने से पहले हमें देखना है कि 4 पॉइंट्स इस्तेमाल करने, तो कौन से 4 पॉइंट्स इस्तेमाल करने, 3.3 के इर्द गिर्द के 4 पॉइंट्स, 2 ऊपर 2 नीचे। सो हमारे स्टार्टिंग पॉइंट इज 2.5, तो x माइनस x2 यानी 3.3 माइनस 2.5 डिवाइडेड बाई 0.6, 4/3 आ गया। और फिर इस फॉर्मूले में यहाँ पर हमने बाहर 1/h रखा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, और चूंकि हम यहाँ सेकंड डेटा सेट के हिसाब से जो इंडेक्स आ रहा है पॉइंट का वो सेकंड है, तो y डेल्टा y2 फर्स्ट ऑर्डर दैट स्टार्ट्स एट x2, सेकंड ऑर्डर दैट स्टार्ट्स एट x2, थर्ड ऑर्डर दैट स्टार्ट्स एट x2, और क्यूबिक चाहिए तो थर्ड ऑर्डर से आगे जाने की जरूरत नहीं है। सो डेल्टा y2 10.016 प्लस 1/2 फैक्टोरियल s प्लस s माइनस 1। सो मैंने इसको s माइनस 1 की फॉर्म में लिखा है, और इसके साथ जो फॉरवर्ड डिफरेंस आ रहा है सेकंड डिग्री है, सेकंड ऑर्डर आ रहा है, तो 8.233। फिर उसके बाद फॉर्मूले का 1/3 फैक्टोरियल यानी 1/6, और s माइनस 1 s माइनस 2 प्लस s इंटू s माइनस 2, तो s हर जगह s की जगह 4/3 रख के, और फिर थर्ड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस हमने यहाँ लिखा सिंप्लीफाई करके। We obtain an estimate. Now this estimate that we have obtained, मैंने कहा था कि इसको हम वेरीफाई करने के लिए सिर्फ ग्राफिकल टूल ही इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैंने थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट भी किया था वो। So this is the way we use use a tool to find an estimate of derivative when equally spaced data is given. Last thing that we discussed in this article was higher order derivatives. हमने बताया था कि अगर फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरप्रेटिंग पोलिनोमियल से बनने वाला डेरिवेटिव फार्मूला जो है उसमें x की जगह x0 रख दें तो ये फॉर्म बनती है। और हमें याद होना चाहिए कि फॉरवर्ड डिफरेंस जो है वो ये चीज़ है, fx1 माइनस fx0, y1 माइनस y0, या fx0 प्लस h माइनस fx0। अगर इसको मैं डिवाइड कर दूं h से, तो अगर आपको कैलकुलस थोड़ी बहुत याद तो ये डेरिवेटिव का इंक्रीमेंटेड रेशियो बन जाता है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज इन अ वे एन एस्टिमेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एक्सेप्ट फॉर के उसके सही मानों में जब तक मैं h से डिवाइड नहीं करूंगा, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन बनाने के लिए जब तक मुझे ये एग्जैक्ट डेरिवेटिव एस्टिमेट नहीं करेगा। बट लेट अस सी विद दिस नोटेशंस, हमने ये बताया था कि किसी एक्स आई पर जब आप फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस लेंगे तो इसका मतलब है वाई आई प्लस 1 माइनस वाई आई, या वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स आई प्लस 1 माइनस वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स आई, जिसको मैं डेल्टा एफ आई ब्रीफली लिखता हूँ, इसको ब्रीफली एफ आई प्लस 1 माइनस एफ आई लिखता हूँ। इसका मतलब है नेक्स्ट फंक्शन वैल्यू मुझे कैसे मिलती है, प्रीवियस फंक्शन वैल्यू में फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस ऐड करता हूँ। इन दोनों के अंदर से अगर मैं राइट साइड पे एफ आई कॉमन निकाल लूँ तो 1 प्लस डेल्टा लाइक अ डिफरेंशियल ऑपरेटर बन जाता है। इस डिफरेंशियल ऑपरेटर को असल में हम एक नाम देते हैं, एंड दैट नेम इज स्टेपिंग ऑपरेटर, और हम इसको डिफाइन कर रहे हैं इस इक्वेशन से। वी डिफाइन स्टेपिंग ऑपरेटर। स्टेपिंग ऑपरेटर मीन्स गोइंग फ्रॉम वन फंक्शन वैल्यू टू द नेक्स्ट फंक्शन वैल्यू। तो अगर मैं fx0 पर स्टेपिंग ऑपरेटर लगाऊं तो अगली फंक्शन वैल्यू आ जाएगी, यानी fx0 प्लस h। सो fi पर लगाऊंगा तो fi प्लस 1 आ जाएगी। अगर मैं ये 2 दफ़ा लगाऊंगा तो इसका मतलब मैं एक पॉइंट से उछल के दूसरे पे और फिर तीसरे पे पहुंच जाऊंगा, और अगर एक और दफ़ा लगाऊंगा तो चौथे पे पहुंच जाऊंगा। एक और दफ़ा लगाऊं, सो इट इज कैन बी कॉल्ड अ जंपिंग ऑपरेटर, गोइंग फ्रॉम वन फंक्शन वैल्यू टू द नेक्स्ट फंक्शन वैल्यू, ब्ला ब्ला।
So we see that fi plus 1 is e times fi. तो ये हम पहले देख चुके हैं कि fi plus 1 is 1 plus delta times fi. So 1 plus delta जो है वो हमारा स्टेपिंग ऑपरेटर है, जो कि हमने अभी यहाँ क्लियरली दोनों की इक्वलेंस शो कर दी है। हमने अगर डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी है तो वहाँ पर हमने यकीनन डी ऑपरेटर इस्तेमाल किया होगा। नहीं पढ़ी तो पढ़ लेंगे कुछ अर्से में। So from the study of differential equations, df, capital DF means df by dx, or capital D raised to power nf means, क्या रिकॉर्डिंग चल रही है ना? कैपिटल D raised to power nf means f का nth order derivative निकाले। In view of this, we start with fi plus s. This indicate के स्टेपिंग ऑपरेटर कितनी दफा लगाया है। fi plus 1 एक दफा लगाया है, fi plus 2 दो दफा लगाया है, fi plus 3 तीन दफा लगाया है, fi plus s दफा लगाया है। Where हमें याद है कि s का फॉर्मूला जो था 1/h इंटू जिस पॉइंट पे हम डेरिवेटिव एस्टिमेट कर रहे हैं माइनस xi is the starting point, so that derivative of fi plus s is d by dx of this thing. ना इसमें s एक्सप्लिसिट मौजूद नहीं है, लेकिन ऑपरेटर मैथमेटिक्स डेवलप करके हमने एक ऐसी चीज इंट्रोड्यूस कर ली जिसमें s एज अ वेरिएबल अपीयर हो रहा है। अब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s मींस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s इनटू ds by dx। तो ds by dx तो 1/h आता है, हम पहले भी देख चुके हैं। e पावर s इंटू fi का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x। तो हमने ये याद दिलाया कि अगर हम b e पावर x का डेरिवेटिव लेते हैं तो एज इट इज आता है, लेकिन b पावर x का डेरिवेटिव लें तो b पावर x मल्टीप्लाइड बाई log of b आ जाता है। यहाँ e पावर s है तो e पावर s का डेरिवेटिव e पावर s होगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे ln e से। हाँ, हमारे इस रिजल्ट के अंदर b जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। स्टेपिंग ऑपरेटर, of course this is an operator not a number, so we don't bother about whether it is positive or not. So this is now a formula for derivative of fi plus s. Since e is 1 plus delta, and where delta is the difference operator, जब मैं इसका डेरिवेटिव s को 0 रख दिया, e पावर s e पावर 0 हो गया। So we have got this result. ये रिजल्ट है एक्चुअली। बाकी नोटेशंस की इंटरप्रिटेशन है, चूंकि ln e आ गया मेरे पास, तो e इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा, और मेरा जो डेरिवेटिव है या डेरिवेटिव ऑपरेटर जो पहले d बाई डी एक्स था, अब वो डेरिवेटिव ऑपरेटर हो गया 1/h ln ऑफ 1 प्लस डेल्टा। याद रहे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको d का मतलब क्या था। d का मतलब था d बाई डी एक्स, जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन में करते चले आ रहे हैं। अब यहाँ जो डी ऑपरेटर आया है उसकी डेफिनेशन है 1/h, h दी स्टेप साइज ऑफ द इक्वली स्पेस डेटा, ln प्लस 1 प्लस डेल्टा। डेल्टा इज द डिफरेंस ऑपरेटर। अगर डेल्टा को मैं किसी फंक्शन वैल्यू पे लगाता हूँ तो अगली फंक्शन वैल्यू आती है। कैलकुलस से हमारे पास ये रिजल्ट भी है कि ln ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स 4 एक्स पावर 4 अपॉन 4। तो यही रिजल्ट अगर ln 1 प्लस डेल्टा पे लगा दिया जाए तो डी ऑपरेटर जो हमारे पास है, जिसको हम डिफरेंशियल ऑपरेटर कह रहे हैं, वो ये बन जाता है। और इसको मैं फंक्शन पे इस्तेमाल करूं तो दिस इज द रिजल्ट। नाउ दिस इक्वेशन 7 इज नथिंग बट दिस इक्वेशन 7 इज नथिंग बट कि जो हमने शुरू में, लेट मी शो यू, हमने कहीं ये
x इज इक्वल टू एक्स नॉट या s इज इक्वल टू 0 रख के ये रिजल्ट हासिल किया था। और ये जो रिजल्ट 7 आया है हमारे पास, ये एग्जैक्टली वही रिजल्ट है। इस रिजल्ट में और इस रिजल्ट में कोई फर्क नहीं है। हाँ, यहाँ पे वाई नॉट थ्रू आउट कॉमन निकाल के बाहर रख दो तो ये बाहर आ गया, वाई नॉट की जगह एफ आई है। So this differential operator which is defined here, अगर मैं फंक्शन वैल्यू पर इसको रिपीटेडली लगाऊं तो मुझे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के एस्टिमेट मिल जाएंगे। एफ आई पे डी एक दफ़ा लगाया, एफ आई पे डी 2 दफ़ा लगाया, इसका मतलब दिस इनटू दिस, और उसको सिंप्लीफाई किया, फर्स्ट फ्यू टर्म्स कलेक्ट की तो ये आ गया। इसी तरह 3 दफ़ा लगाऊं तो 3 दफ़ा लगाने के बाद जो टर्म्स बचेंगी मल्टीप्लाई करके, तो कम से कम एक दफ़ा लगाने से स्मॉलेस्ट फॉरवर्ड डिफरेंस फर्स्ट ऑर्डर है, 2 दफ़ा लगाने से स्मॉलेस्ट ऑर्डर डिफरेंस इन्वॉल्व इज डेल स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर है। अगर मैं 3 दफ़ा लगाऊंगा तो यहाँ पे 1/h3 आ जाएगा, और 3 एक्सपेंशंस को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा उसमें स्मॉलेस्ट ऑर्डर ऑफ द डिफरेंस विल बी 3। सो वी समराइज दिस कि एक दफ़ा लगाया तो डेल स्क्वायर, एक दफ़ा लगाया तो सिर्फ डेल ऑपरेटर, 2 दफ़ा लगाया तो डेल स्क्वायर, 3 दफ़ा लगाया तो डेल क्यूब, और n दफ़ा लगाया तो 1/h⁻n डेल n। तो ये असल में हमारे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव एस्टिमेट्स के फॉर्मूले बन गए। मैंने ये मैथमेटिकली तो डिस्क्राइब कर दिया, लेकिन हम इस कोर्स में चूँकि बहुत सारी चीज़ें और करनी है, फिल वक्त इसको यहीं मौखर करेंगे। एंड परहैप्स आई विल इफ़ आई, हमारे पास 2 तो 4 तो 6, मेरे ख्याल है मैक्सिमम भी 6 या 7 क्लासेस बाकी हैं। मुझे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन चाहिए। ये सारी बातें जो इस वक्त तक मैंने दोहराई हैं, ये सब हम पहले कर चुके थे, मैंने इनको रिवाइज किया है आज। एंड नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड। और कुछ असाइनमेंट और कोई क्विज़ेस के शेड्यूल बनाने हैं, क्योंकि जो अब तक कोई तब्दीली नहीं आई है। एग्ज़ाम जो है गालिबन कब से शेड्यूल्ड हैं? 28 दिसंबर सर 3 तारीख से 3 जनवरी। तुम्हारा पहला पेपर 3 तारीख है। मुझे जो शेड्यूल मिला है उसमें मेरा एक रियल एनालिसिस का पेपर गालिबन 28 दिसंबर को है। एनीवेज, अगर 3 जनवरी से हैं, इसका मतलब 30-31 दिसंबर क्लासेस होंगी, तब शायद हमारे पास 8 या 9 क्लासेस हों। तो सर मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, चेक कर लेना, अभी ज़रूरत नहीं है। मतलब ये कि मैं आई एम गोइंग फॉर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ माय कोर्स डिलीवरी। हमने इंटरप्रिटेशन टेक्निक्स डिस्कस की हैं, और इंटरप्रिटेशन टेक्निक्स के बाद हमने विजिट किया एक तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को, आइटरेटिव मेथड्स को, उसके अलावा न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन को। असल में न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन को हमने सिर्फ उस हद तक एक्सप्लोर किया है डिटेल में जिस हद तक कि मुझे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की में उसकी ज़रूरत पड़ती है। सो आई एम कमिंग टू न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, which is more frequently used by the end users जिनको न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है। Yes, numerical differentiation concepts are more deeply and more heavily used. Yes, एक मिनट, बाकी काम तो हाँ सिर्फ है।
आज कुछ सर्दी कम हो गई है या मुझे गर्मी लग रही है? सॉरी नहीं फॉर सर, द हो गई है कम सर्दी। सर्दी कम हो गई है ना? यस मैं सर। स्वेटर पहना हुआ था तो मैंने कहा बैठे बैठे भी बोल रहा हूँ तो गर्मी लगने लगी, पसीने छूट रहे हैं। अच्छा जी, मैं ये कह रहा था कि न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन जो है उसमें जो कॉन्सेप्ट बिल्ड हुए हैं, दे आर more deeply and more heavily used when we study numerical solutions of differential equations. उसकी भी हम झलक देखेंगे इस कोर्स में. Second course in numerical analysis involve those details which are uh, those details of numerical analysis that are applied to solve differential equation, first order, second order, linear, non-linear, system of differential equations. और चूंकि modeling means in practical problem solving, जिसमें कोई भी डायनामिकल सिस्टम हो सकता है, लाइक ब्लड फ्लो इन द बॉडी, ह्यूमन बॉडी से लेके एंड बॉडी प्रॉब्लम ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ मोशन ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम. एंड लेटली जिस तरह से बाहर हमारे सोलर सिस्टम के बाहर जो स्टार्स हैं उनके गिर्द जो निकल के आए डिस्कवर हुए हैं प्लैनेट्स, तो हमारे जिस्म के अंदर जो कुछ हो रहा है उससे लेके पूरी कायनात में जो कुछ हो रहा है, हर जगह मॉडलिंग में डिफरेंशियल इक्वेशंस बहुत हैवीली इस्तेमाल होती हैं. तो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन यहाँ इंट्रोड्यूस कराई गई है और उसका थोड़ा सा इस्तेमाल हम कुछ हल्की फुल्की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इस कोर्स में करेंगे. न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन ऑफ कोर्स इज पार्ट ऑफ ऑल दैट प्रोसेस, और हम देखेंगे कि हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन जो है उसके टूल्स कैसे डेवलप करेंगे. जो हम टूल्स डेवलप करेंगे उनसे जो फॉर्मूले आएंगे, they are commonly known as Newton-Cotes formulas. Or we will develop these formulas step by step on the basis of equally spaced data. And in numerical analysis, numerical integration जो है उसको मैं सिर्फ equally spaced data पे consider कर रहा हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे ऐसे functions deal करेंगे जो डेटाबेस नहीं होंगे, यानी कि सर्वे, हाँ सर्वे से भी आ सकते हैं, लेकिन मोस्टली एंड यूजर जो है यहाँ नॉन फंक्शन इस्तेमाल करते हैं जिनके डेरिवेटिव निकालना, जिनके एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल निकालना बड़ा मुश्किल होता है. और आपको याद होगा कि जब आप कैलकुलस पढ़ रहे थे तो सबसे ज़्यादा जो डर लगता था वो इंटीग्रेशन टेक्निक से ही लगता था. तो व्हेन वी हैव कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस जो मुश्किल से इंटीग्रेट होता है, या कुछ फंक्शन ऐसे सिरे से इंटीग्रेट ही नहीं होते, हर दो केसेस में, इन both the cases when a function can be integrated with lots of difficulty or the function cannot be integrated, there are conditions applied that we can obtain estimate of integrals using these techniques that we are developing. What conditions applied? We will, as we go into detail, हम बताते रहेंगे. ट्रेपेजॉइडल रूल, ये किसी न किसी शक्ल में अगर आपने ए लेवल किया है तो वहां पढ़ा होगा. We consider first degree approximation. First degree approximation. Where do we have approximation tool? Here we have approximation tool. First degree approximation tool means only these two terms. That means function को मैं estimate करूंगा कि it's behaving like this, whatever function I'm having. So हम fx को इंटीग्रेट करने जा रहे हैं फ्रॉम x0 to x1, जिसको हम आमतौर पे यूं लिखते हैं. We recall that x is equal to x0 plus sh. Our formula was what? हमारा फॉर्मूला था s is equal to, यार ये बड़ा क्यों कर रहा है,
x minus x डिवाइडेड बाई h। ये था हमारा फॉर्मूला। इसमें से x अलग कर रहे हैं, इसमें से x अलग करेंगे तो इधर का h इससे जाके मल्टीप्लाई होगा और x नॉट प्लस एस एच। h की वैल्यू दो कंसेक्यूटिव x वैल्यू का डिफरेंस है। सो इस x से dx निकालोगे तो x तो नॉट तो कांस्टेंट है, जब x नॉट कांस्टेंट है तो sh का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x लिया आपने, राइट साइड पे वेरिएबल इज s, सो h कांस्टेंट h ds। x इज इक्वल टू x नॉट का मतलब s इज इक्वल टू 0 फॉर विच x इज इक्वल टू x1 के लिए s इज इक्वल टू 1 प्लस ये जो हमारा इंटीग्रल है x नॉट से x1, तो x नॉट का कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स 0, s इज इक्वल टू 0, x1 का कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स s इज इक्वल टू 1। सो इंटीग्रल हमारा रेंज जो है वो s इज इक्वल टू 0 से s इक्वल टू 1 हो गई। एफ एक्स की जगह हम एफ एस लिख रहे हैं और डी एक्स की जगह हम क्या लिख रहे हैं, एच डी एस। और एफ एस को एस्टिमेट कर रहे हैं हम फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब वाई नॉट प्लस एस डेल्टा वाई नॉट। तो हमने एफ एस की जगह वाई नॉट प्लस एस डेल्टा वाई नॉट रख दिया। ऑफ कोर्स दिस इज ओनली फर्स्ट डिग्री अप्रोक्सीमेशन ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन। तो हमारा रिजल्ट जो है दैट विल नॉट बी वेरी एक्यूरेट when we apply the tool that we are developing here. This will not be accurate. हम इसके behavior को discuss करेंगे। अच्छा जी, let us develop the tool. इसको integrate करना है मुझे in the range s is equal to 0 to s equal to, इसका मतलब s variable है, h constant बाहर आ गया, y नॉट constant इंटीग्रल ds के साथ s आ गया, s into y नॉट, डेल्टा y नॉट constant y1 minus y नॉट अलग हुआ और s का इंटीग्रल s स्क्वायर बाई 2 आ गया इन द रेंज x इज इक्वल टू 0 टू 1। इंटीग्रेशन लिमिट जो है वो s पर है, जाहिर है s पे इंटीग्रेशन हुई है 0 टू 1। जब मैं s इज इक्वल टू 0 डालूंगा तो पूरा पूरा 0 हो जाएगा, लेकिन s इज इक्वल टू 1 डालूंगा तो दिस विल बी y नॉट प्लस 1 अपॉन 2 डेल्टा y नॉट माइनस s इज इक्वल टू 0 डालने से सब कुछ 0 हो गया। तो जनाब ये इस शक्ल में आ गया, किस शक्ल में, y नॉट प्लस 1 by 2 delta y naught, and delta y naught is nothing but y1 minus y naught. So ये इंटीग्रल जो s इक्वल टू 0 से s इक्वल टू 1 तक है, यानी x इज इक्वल टू x नॉट से x इक्वल टू x1 तक है, उसका हमारे पास रिजल्ट ये आया फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन से। अब इस रिजल्ट को अगर आप सिंप्लीफाई करें y नॉट प्लस हाफ y1 माइनस हाफ y नॉट, तो हाफ y नॉट और हाफ y1 बचते हैं, जिनमें से हाफ कॉमन निकाला तो इस इंटीग्रल का एस्टीमेट आया h अपॉन 2 इंटू वाई नॉट प्लस 1। दिस इज द रिजल्ट व्हेन आई टेक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एस्टिमेटेड अप टू फर्स्ट ऑर्डर x नॉट से x1 तक, रिजल्ट h अपॉन 2 वाई नॉट प्लस 1 y1। अगर मैं ये काम पूरा दोहराऊं x1 टू x2 से तो आएगा मेरे पास h अपॉन 2 प्लस नेक्स्ट टू y वैल्यूज। ये फर्स्ट टू y वैल्यूज थी, ये फर्स्ट टू x वैल्यूज थी। फर्स्ट टू x वैल्यूज के लिए यहाँ सम ऑफ फर्स्ट टू y वैल्यूज, सेकंड टू x वैल्यूज के लिए यहाँ सेकंड टू y वैल्यूज, नेक्स्ट टू x वैल्यूज के लिए नेक्स्ट टू y वैल्यूज, एंड वी कीप ऑन गेटिंग टर्म्स ऑफ दिस टाइप, एंड देन फाइनल टूल डेवलपमेंट इज कि आप इन सारे रिजल्ट्स को ऐड करते हैं। जब आप इन सारे रिजल्ट्स को ऐड करते हैं तो आपके पास इससे वाई नॉट प्लस इससे एक्स नॉट से x1, x1 से x2, x2 से x3 एंड सो ऑन। सो वाई नॉट प्लस y1, ये कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है, पहले से वाई नॉट प्लस y1
दूसरी से y1 प्लस y2, तीसरी से and we note that every y value is repeated except for first one and the last one. यहां से देख लें y0 plus y1, y1 plus y2, y2 plus y3, y3 plus y4, y4 plus y5, y0 दोबारा नहीं आया और आखिरी वैल्यू y की जो है वो भी इससे पहले अपीयर नहीं हुई। चुनाचे से सारी y वैल्यूज ट्वाइस हैं except for the first y value and the last y value. And this is the formula that is known as trapezoidal rule or Newton's Cotes formula of first degree approximation. मैं ये फाइल शेयर कर चुका हूँ LMS पे। आई होप यू कैन सी इट देयर। इसमें मैंने क्या किया हुआ है, एक्सेल शीट है, एक खौफनाक फंक्शन लिया हुआ है sin x e पावर x स्क्वायर प्लस 2। x गोज फ्रॉम 0 to 1, मैंने h ले लिया 0.1, तो x की इस फंक्शन की वैल्यू 0 पे, फिर 0.1 पे, फिर 0.2 पे, फिर 0.3 पे एंड सो ऑन ऐड करता चला गया, कैलकुलेट करता चला गया। x इज इक्वल टू 0 से लेके 1 तक फंक्शन वैल्यू कैलकुलेट कर ली एट स्टेप साइज 0.1। ये जो कॉलम है, ये कॉलम दरअसल फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, लास्ट वैल्यू एज इट इज, बाकी ये जो बीच की वैल्यूज हैं ये इसका डबल, ये इसका डबल, ये इसका डबल, क्योंकि हर y वैल्यू डबल हो रही है एक्सेप्ट फॉर फर्स्ट वैल्यू एंड द लास्ट वैल्यू। और इन सब का सम ये आया और सम को h/2 से मल्टीप्लाई कर दें, बाहर जो h/2 है तो 0.1, तो ये आ गया रिजल्ट। अब अगर ये इंटीग्रल ऐसा होता जिसकी मुझे वैल्यू पता होती तो फिर मैं ये भी कह सकता था कि एरर कैसा है, कितना है। बट इंस्टेड ऑफ दैट मैं फंक्शन लेता हूं I'll demonstrate the use of this. ये हमने रिजल्ट लिख दिया, लेकिन मैं यहाँ बीच में जो है ऐसा फंक्शन लिखता हूं जिसका इंटीग्रल मुझे मालूम हो। sin x इंटू कॉस एक्स, ठीक है जी। और मैं ये चाहता हूं कि इस फंक्शन को इंटीग्रेट करूं बिटवीन व्हाट एंड व्हाट, 0 से मैं जाता हूं π/4 तक। Do I have that symbol of pi there? Yes, it should be there. अगर मेरा इक्वेशन एडिटर मुझे तंग ना करे, 0 to π/4। अच्छा, और मुझे ये फंक्शन मालूम है क्या है, मैं इससे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। ये है 2 sin x cos x जो होता है वो sin 2x होता है, तो ये 1/2 sin ऑफ 2x है। और आप सब लोगों को इसे इंटीग्रेट करना आता है। सो व्हाट्स द इंटीग्रल ऑफ दिस?
जी, somebody help me, what's the integral of, अरे यार ये मैंने दोबारा कॉपी कर लिया। 1/2 अपनी जगह रहेगा यार, ये भी गड़बड़ कर रहा हूँ। हाँ भाई, sin 2x का इंटीग्रल क्या है? पता नहीं आप लोग मेरे साथ हैं या नहीं। माइनस cos 2x माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, और एक 1/2 पहले से था, एक 1/2 पहले से था ना, तो ये 1/4 हो गया। व्हाट लिमिट? जो लिमिट्स हैं वो क्या है? अब मैं ज़्यादा उसमें तफसील में नहीं आ रहा। मेरे पास लिमिट 0 to π/d, फ्रॉम 0 to this π/4। हाँ भाई, इज इक्वल टू माइनस, अगर अपर लिमिट π/4 रखोगे तो यहाँ क्या आएगा? π/2, cos π/2 will be 0, माइनस अगर x की जगह 0 रखोगे तो cos 0 1, तो -1/4, -1/4, और अल्टीमेट रिजल्ट क्या हो गया? एक बाहर का माइनस, एक अंदर का माइनस, और एक और माइनस, सो -0.25, ये मेरे पास रिजल्ट आ गया। ये फंक्शन मैं जानता था, मैंने इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करके इसका रिजल्ट लिख दिया। लेट अस नाउ मूव टू आवर एक्सेल शीट एंड ट्राई टू सॉल्व द सेम फॉर्मूला। व्हिच वन? कहाँ गई फाइल? न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। मुझे इसका एस्टीमेट निकालना है। And I want to go to Excel sheet to find this out. ये मेरा प्रॉब्लम है। अब इंडेक्स, एक्स वैल्यू, fx value 0, x value starts at 0, function is what? Sin x, which is g, पता नहीं क्या, कौन से सेल पे हूँ मैं? 8th सेल पे हूँ। g8 star cos of g8। अच्छा जी, इंडेक्स वैल्यू इज इक्वल टू f8 plus 0.1। Now, how do I get the step size? मैं step size भी 0.01 ले लेता हूँ, is equal to g8 plus 0.01. Do we know the value of π/4? So अगर हमें नहीं पता तो हम पाई डिवाइडेड बाई 4 लिखें तो ये वैल्यू आती है। तो मैं 0.8 तक कैलकुलेशन करता हूँ। ये फंक्शन वैल्यू है। So now I go up to 0.8, 0.7 हुआ, 0.8 तक। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि नहीं 0.8 तक नहीं, एग्जैक्ट पॉइंट जाएं,
तो दो चीजों में गड़बड़ होगी, एच डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मैं वापस जाता हूं और अपनी एक्सेल शीट में, अपनी वर्ड शीट में, ये जो अपर लिमिट है इसको π/4 की बजाय 0.8 कर दूं, इसको 0.8 कर दूं, तो यहाँ भी मेरे पास 0.8 हो जाएगा। और फिर जो मैं फंक्शन वैल्यू अल्टीमेटली कैलकुलेट करूँगा, कॉस ऑफ 2 टाइम्स ये जो है यहाँ पे अपर लिमिट क्या होगी 0.8, तो यहाँ अब ये 0 नहीं आएगा। सर आपका वर्ड डॉक्यूमेंट दिख नहीं रहा, आपने Really? एक्सेल शीट नजर आ रही है, वो शेयर हो रही है। नजर जी आई? अब ठीक है। अब जी जी सर। मैं ये कह रहा हूँ कि π/4 की जगह मैंने 0.8 कर दिया ताकि h का झगड़ा ना हो। π/4 इज नॉट सिमेट्रिकल एज फार एज h कंसर्न। तो अपर वैल्यू जब इसके अंदर रखेंगे तो अब हमारे पास होगा नेगेटिव 1/4 बाहर आ जाएगा, और अंदर जो है कॉस ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.8 माइनस कॉस ऑफ 0। अच्छा ये मैंने यहाँ गड़बड़ कर दी थी भाई, एक कॉस ऑफ 0 जो है उससे हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, क्योंकि -1/4 तो हम पहले बाहर निकाल चुके, तो cos 2 times 0.8 minus cos of 0, so cos of 0 is 1. I hope you can write down this correct number now. I go back to Excel sheet with these adjustment into the problem. So हम 0.8 तक आ गए। पहली y वैल्यू जो है वो ये है, ये एज इट इज रहेगी। लास्ट y वैल्यू जो है वो h of what 16 एज इट इज रहेगी। बाकी सारी वैल्यूज जो हैं वो 2 टाइम्स हो जाएंगी मेरे फॉर्मूले के हिसाब से, 2 टाइम्स h9 एंड सो हमारा जो फॉर्मूला था, लेट मी शो यू दैट फॉर्मूला अगेन, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। ये था मेरा फॉर्मूला, फर्स्ट y वैल्यू एज इट इज, लास्ट y वैल्यू एज इट इज, बीच की तमाम y वैल्यूज जो हैं उनको 2 से मल्टीप्लाई किया और बाहर h/2 आएगा। सो ये है y0, ये है y1, y2, y3 और ये लास्ट y। मैं इसको y नहीं लिख देता हूँ, ये सॉरी ये y नहीं, ये 2 स्टार y1 है, ये 2 स्टार y2 है, एटसेट्रा। तो काउंट करते हैं तो हम इंडेक्स वैल्यू, अरे यार ये इंडेक्स वैल्यू मैंने इसमें पॉइंट क्यों किया हुआ है, सो ये y8 है, इससे पिछली वैल्यू जो है 2 स्टार y7 है, एंड दीज आर ऑल ट्वाइस ऑफ दिस कॉलम। सो एक तो हम निकालते हैं सम किन का, यहां से लेके और यहां तक का, सो दैट सम इज फ्रॉम I8 up to what I16, और इस सम को हमने मल्टीप्लाई करना है किससे, h/2 से। h/2 से, सही।
is equal to I-17 multiplied by H. What is H? 0.01 divided by 2. Sorry, there is another disturbance. May I take a call? अस्सलाम वालेकुम रफीक भाई। मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, थोड़ी देर बाद कॉल करूँगा। थैंक यू। अच्छा जी, ये रिजल्ट आ गया। अच्छा, जरा उसको उस पर गौर करें जो हमारे पास एक्चुअल कंप्यूटेशन थी ना वर्ड फाइल में न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की, वो क्या थी? वो ये थी। Let us repeat this on Excel sheet to show the comparison. So what shall be this value? Negative 0.25 मैं लिख रहा हूँ 1/4 की जगह. Then star cos of this is 1.6. Remember मेरा Excel जो है वो रेडियन मॉड में ही काम करता है और ये सब रेडियन मॉड है. 0.2573 and my result is 0.256. So you can say that the result is correct up to 2 decimal places. My question is that, can I improve upon this result? Without changing method? interval size change करें तो interval size को छोटा कर दें, क्योंकि जो interval size है वो जितना छोटा होगा उतना हमारे इम्कान है कि रिजल्ट बेहतर होगा. तो इंटरवल साइज छोटा करने के लिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे 0.05 कर देता हूं. And then rest of the values अभी तो सिर्फ आधा काम हुआ. कहाँ पहुंचा मैं? 0.4 पे, 0.8 पे नहीं पहुंचा अभी मैं. So I have to produce more points. Okay? ज़्यादा आगे चला गया. Let me recheck. ये फर्स्ट वैल्यू एज इट इज आएगी. ये ट्वाइस मल्टीप्लाई हो रही है, सब ट्वाइस से मल्टीप्लाई हो रही हैं, सब ट्वाइस से मल्टीप्लाई हो रही हैं. ये ट्वाइस से मल्टीप्लाई नहीं होगी, लास्ट वैल्यू है. अच्छा जी. एंड देन आई टेक द सम फ्रॉम व्हाट? I-22 अप टू I-38. सो y0 से लेके yn तक सारी वैल्यूज हमने ऐड कर ली इस तरह से कि y0 और y16 एक एक दफ़ा आई और बाकी सारी y वैल्यूज डबल आई. सम तैयार हो गया. इज इक्वल टू h/2. सो h हमारा 0.02 है. सो मैं I-39 को मल्टीप्लाई करूं 0.05 जो कि मेरा पास h है डिवाइडेड बाई 2. What's the result? The original was this value. This is the exact result, and now my result is correct to 3 decimal places. So correction is moving slowly. अगर मैं H01 कर लूँ, इसका मैं 101 पॉइंट कैलकुलेट करूँ, तो I will get still a better result. मगर याद रहे कि this was only first degree approximation, the least degree approximation. Can I go to a higher degree of approximation? Yes, of course. So it's a good idea कि मैं h को छोटा कर दूं, I will have a better result, but the improvement is not much.
At times we require 6 decimal place accuracy or 10 decimal place accuracy. तो हमारा फर्स्ट डिग्री अप्रोक्सीमेशन जो है उस पर जाएगा तो हमें बहुत सारे पॉइंट कैलकुलेट करने पड़ेंगे. So let us consider another method, another tool, which is instead of being first degree approximation, वो ज़्यादा बेहतर हो. अब ये जो एग्जाम्पल है इसको जो मैंने वर्कशीट वर्ड शीट में किया हुआ है इसको तुम लोग एक्सेल में रिपीट करना. मैं ये वाली एक्सेल फाइल भी शेयर कर दूंगा. ठीक है. अच्छा जी. Another example done. Repeat these examples, practice them. From a known function, you can write down the exact error. From an unknown function, you cannot write down the exact error. But I told you that we have to go for a better method, which previous was first degree. So a better one would be a second degree. A second degree approximation means कि मैं fs की जगह अब second degree interpolating polynomial इस्तेमाल करूँ. Previously, I used first degree approximation, interpolating polynomial. What's that? Here, I use the first degree for equally spaced data, forward difference interpolating polynomial, first degree तक. अब मैं जा रहा हूँ second degree तक इस्तेमाल कर. So second degree तक ये फॉर्मूला हो गया. बाकी सारे स्टेप वही हैं. इंटीग्रेट करूंगा अब x0 से x2 तक. Now why not x0 से x1? x0 से x1 का मतलब है डेटा से मैं सिर्फ 2 पॉइंट इस्तेमाल कर रहा हूँ. 2 पॉइंट इस्तेमाल करने का मतलब होता है लीनियर अप्रोक्सीमेशन. But when I go for second degree approximation, I have to use 3 points. So instead of x0 से x1 integrate करने के मैं integrate करूंगा from x0 to x2. That is 3 points. Consider corresponding x values कैसे s is equal to 0 और s is equal to 2 हो जाती हैं. I hope you can find it out. And how the integration integrand is modified. fx की जगह अब fs और dx की जगह ds as it appeared before. और फिर fs की जगह second degree forward difference interpolating polynomial. So you have to integrate this thing. So we have to integrate this. अच्छा भाई, why not को इंटीग्रेट करूंगा तो कांस्टेंट को इंटीग्रेट करना h एक तो सबसे बाहर आ जाएगा इंटीग्रल के पूरे का पूरा. सो y नॉट इंटू डी एस इंटीग्रेट करेंगे तो s बचेगा. y नॉट s आ गया. डेल्टा y नॉट डी एस इंटीग्रेट करेंगे तो डेल्टा y नॉट कांस्टेंट है. सो s का इंटीग्रल s स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल. सो 2 इंटीग्रेशन वाला 2. फिर अगली टर्म डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट कांस्टेंट, ये है एस स्क्वायर. तो एस स्क्वायर का इंटीग्रल एस क्यूब बाई 3 माइनस एस का इंटीग्रल एस स्क्वायर बाई 2 और 1/2 फैक्टोरियल इंटरप्रेटिंग पोलिनोमियल का कांस्टेंट. ये इंटीग्रेशन हो गई जो उसमें अब एस का फंक्शन इंटीग्रेट हो गया. एस की वैल्यू 0 to 2 है. अब इसके अंदर एस की वैल्यू पहले 2 रखी, ये आया. फिर एस की वैल्यू 0 रखी, ये आया. नहीं, जब 0 रखोगे तो 0 0 0 0 सब 0 हो जाएगा. तो बस एस इज इक्वल टू 2 के लिए जो रिजल्ट आया उसी को सिंप्लीफाई करके लिख दिया. एंड वी सी दैट इफ आई अप्लाई दिस टेक्निक फॉर फर्स्ट 3 पॉइंट्स, that is from x0 to x2, the result is h upon 3 first y value plus 4 times second y value plus third y value. चुनाचे अगर next 3 point पर मैं ये सारा काम दोहराऊंगा, if I repeat all this work on the next 3 point, and next 3 point means x2 to x4, so my result will be symmetrical. H by 3
first y value, first is now corresponding to x2, so it is y2, plus 4 times next y value plus next y value. So 141, 141, 141, up till the last interval from x n minus 2 to n. And then we add them together. अच्छा देखो एक वक्त में 3 पॉइंट इस्तेमाल हो रहे हैं ना. So what if I integrate only from x0 to x4? कितने पॉइंट इस्तेमाल होंगे? x0, x1, x2, x3, x4, 5 पॉइंट. So या तो मैं 3 पॉइंट पे ये टेक्निक लगा सकता हूँ, या 5 पे लगा सकता हूँ, या 7 पे लगा सकता हूँ, या 9 पे. तो ऑड नंबर ऑफ पॉइंट्स पर ये टेक्निक लग सकती है. अगर मेरे पास 4 पॉइंट्स हों तो फर्स्ट 3 पे तो ये लगेगा फॉर्मूला, उसके बाद एक ही पॉइंट बचेगा, सो नेक्स्ट 3 नहीं बनेंगे. अगर मेरे पास 10 पॉइंट्स हैं तो 9 पर तो ये फॉर्मूला लगेगा, एक पॉइंट बच जाएगा. सो हम in the beginning will concentrate on using this technique only on odd number of points. Yes, where we first 3 points we get this result, next 3 points we get this result, and for every 3 points next, and we have got these results. Add them together. When we add them together, we see that first 3 points 141, next 3 points 141, next 3 points 141. Now there are clear trends. Terms with odd indices 1, 3, 5, etc. have coefficient 4. Terms with even indices appear in pair. The last index has to be even. आखिरी index even होना चाहिए. इसका मतलब total number of points हमारे पास odd होंगे. So that we can conclude that my new technique or a new Newton's court formula of second degree approximation of integrals is this. First value appears lonely of y, the last value of y appears lonely. All y's with odd indices have a common coefficient 4. All y's with even indices have a common coefficient of 2. So that is known as Simpson's 1 by. अच्छा हाँ, मैं ये भी नोट करो कि जो हमने 3 पॉइंट्स को इंटीग्रेट किया तो पहले पिछले वाले फॉर्म में h by 2 आ रहा था, अब के h by 3 आ रहा है. So that is the reason that this is known as Simpson's 1 by 3 rule of numerical integration. The formula is popularly known as second degree Newton-Cotes formula. उसी फंक्शन पे अब हम Simpson's 1 by 3 रूल लगा रहे हैं, and we find out मैंने यहाँ number of points भी बढ़ा दिए हैं. For comparison, I should have taken same number of points, and I think you can same number of points 0 to 1. तो भाई हमें h का भी ख्याल रखना पड़ता है, तो मैंने h लिया है 0.04. आप h इस तरह से रखेंगे, नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है वो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है वो ऑड होने चाहिए. सो पिछले के मुकाबले में जो रिजल्ट आया है दैट इज डिफरेंट, दैट शुड बी मोर एक्यूरेट, एंड वी विल कंसीडर दिस एक्यूरेसी लेटर ऑन इन द नेक्स्ट लेक्चर. आई विल start the lecture with a revision of both the methods that I've introduced today, and doing some examples on Excel sheet again for this method 1 by 3, and then I'll move to the next method, Newton's 3 by 8 rule. So examples इसमें भी की हुई हैं. Then I'll go to 3 by 8 rule, details of that, examples, and so on. With that मैं आज का कंटेंट तो कंप्लीट कर लिया मैंने. हाँ, 2 बातें डिस्कस करनी थी, 1 फॉर क्विजेस एंड 1 फॉर असाइनमेंट्स. अगर मुझे आज ही रात को मौका मिला
हमने जो अब तक असाइनमेंट किए हैं उसका लास्ट टॉपिक था क्यूबिक स्प्लाइन। असाइनमेंट या क्विज जो भी किया है, एम आई राइट? यस यस सर। सर। सो हमने क्यूबिक स्प्लाइन के बाद जो कुछ पढ़ा है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, गॉसियन एलिमिनेशन और डायरेक्ट डोमिनेंट के लिए आइटरेटिव मेथड्स, और उसके बाद हमने न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन किया है। तो ये वो टॉपिक्स हैं जिनके लिए मैंने एक असाइनमेंट बनाना है और एक एक क्विज लेना है। तो मैं ये सोच रहा था कि असाइनमेंट तो वही हफ्ते भर का टाइम दूं आपको, लेकिन क्विज के लिए मैं शॉर्ट पीरियड टारगेट्स दूं कि भाई सुबह जैसे आधे घंटे का क्विज और क्लास का टाइम ज़ाया करने के बजाय मैं तुम्हें किसी विंडो में, टाइम विंडो में, घंटे 2 घंटे की टाइम विंडो में तुम्हें अपलोड कर दूं LMS पे, और तुम लोगों को शेड्यूल्स पहले से बता दूं कि मैं इतने बजे अपलोड करूंगा और 1 घंटे में या 40 मिनट्स टू 1 आवर तुम लोगों ने करके सबमिट कर देना है। तो अब इसके लिए जो क्विज है, इसके लिए फ्राइडे और सैटरडे का कोई टाइम बता देना, क्योंकि मैं सिर्फ LMS पे अपलोड कर दूंगा, बाकी काम तुम लोगों को करना है, करके सबमिट करना। हाँ, अगर आज रात को मैंने असाइनमेंट अपलोड कर दिया, that will be a guideline for the quiz that you are going to face in this weekend. Is it workable? सर सर वीकेंड है पॉसिबल। तो टाइम बढ़ा दिएगा, चलो 2 घंटे का यानी कर दूं, ड्यूरेशन। 2 घंटे का कर दूं, बट बहुत ज्यादा लंबा टाइम नहीं करूंगा क्विज के लिए। सर असल में ना, अगर आप 4 दिसंबर तक रुक जाएं, क्योंकि ना अभी सारे सब्जेक्ट्स का ही असाइनमेंट पड़ा हुआ है, DS का भी है, DLD का भी है, अभी अभी शायान, कल तो आपका सबमिट किया है। शायान मैं एक हफ्ते की बाद की बात कर रहा हूँ, एक हफ्ते मतलब 4-5 दिन बाद की बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये है, अच्छा अच्छा, बस फिर ठीक है, फिर दूसरी ठीक है, बात फिर ठीक है, दूसरी सॉरी बात सॉरी। और सुन लो। तुम समझ तो गए बात, लेकिन एक चीज ये है कि मैं बार बार याद दिलाता हूँ बच्चों को, तुम किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो? IBA। एंड व्हाट्स द रैंकिंग ऑफ IBA विद इन कराची, मेरे ख्याल से टॉप पे ही है, इन पाकिस्तान, अमंग द टॉप। अमंग द टॉप? सो टॉप यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो रियायतें नहीं मांगते। अच्छा, चले that ठीक is है। why सर they are at the top. You make us at the top. ओके क्या सर। मतलब, ये तो हमारे लिए पता नहीं कोई अल्लाह की तरफ से क्या है बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है, इंसान क्या समझ सकता है। लेकिन इफ देयर वर फिजिकल क्लासेस, मैं श्योर हूँ कि तुम लोग ज़्यादा बेहतर समझते, और मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हैं उनसे कितना समझते हो कितना नहीं समझते हो, इस वजह से मुझे क्विज़ेज और असाइनमेंट बार बार देने पड़ रहे हैं। और मुझे पता नहीं है कि सर, अच्छे से समझ आ जाता है सब आपके मैं रिकॉर्डेड लेक्चर हाँ से। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे एट द एंड अगर लास्ट आवर पे कहा गया कि नहीं 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 फिजिकल एग्जाम नहीं होगा, वो भी ऑनलाइन होगा, तो मैं ऑनलाइन इवेल्युएशन ऑलरेडी इतनी हैवी करना चाहता हूँ कि एट द एंड मेरे पास 30-40% से ज़्यादा ना हो फाइनल। ऑलरेडी मैंने मेरे ख्याल 40% रिवीट रखा है फाइनल, तो मुझे 60% जो है उसमें मैक्सिमम इवेल्युएशन करनी है। और ठीक है, आई डोंट बॉदर। तो मैं अक्सर लोग मजाक उड़ाते हैं, अब मैं जैसे कराची यूनिवर्सिटी में ट्रेंड चल रहा है यार ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो सकती, मैंने कहा यार मैं तो मर गया सुबह शाम मेहनत कर करके, मैंने अपने आप को पूरा सिस्टम जो है वो ट्रांसफॉर्म किया है अपना। ये जो सब कुछ तो मैं नोट्स दिखाता हूँ, फ्री हैंड लिखता हूँ मैं, फ्री ये क्लास जब देता हूँ फिजिकल, ये सारी चीज़ें जो है फिलबदी चल रही होती हैं, हाथ में सिर्फ एक पर्चा होता है कि आज ये डिस्कस कर, उसमें रफ्तार भी ज़्यादा होती है, उसमें मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये कोर्स में 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं मेहनत करके नोट्स बना दिए, कुछ कॉपी किए मैंने कुछ आर्टिकल्स की किताब से, लेकिन ज़्यादातर मैंने अपने वर्ड में फाइल बनाए हैं, उसमें एरर्स अभी भी नज़र आती हैं, तो मैं तुम्हें देख टाइम टू टाइम चेंज करता रहता हूँ। तो जो मैं कर रहा हूँ तो दूसरा क्यों नहीं कर सकता? So if I am part of IBA, which is a top-notch
place. You are also part of IBA. You should be top-notch students. And लोग कहते हैं जी वो जो मिल बैठ के क्विज कर लेते होंगे, मिल बैठ के असाइनमेंट कर लेते होंगे. असाइनमेंट दुनिया जहान में मिल बैठ के किए जाते हैं. So I don't bother about assignment. असाइनमेंट का मेन पर्पस क्या है कि तुम कुछ करो, चाहे मिल बैठ के करो, प्रॉब्लम सॉल्विंग शेयर करो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स शेयर करो. हाँ, क्विज़ का होता है कि वो इंडिविजुअल इवैल्यूएशन होती है. अब आई एम अप अगेंस्ट अ वॉर, पेंडेमिक इज अ वॉर. तो जब जंग छिड़ी हुई होती है तो फिर हम ये नहीं देखते कि हर इंडिविजुअल जो है वो उसके क्या अमाल है. हर इंडिविजुअल अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है. So you have to be sincere to yourself, and quiz should be a challenge for you yourself as an individual. You come to learn how could you know solving problem. हाँ, एक बस प्रॉब्लम ये है कि मैं तुम्हें फीडबैक नहीं दे रहा कि तुमने क्या किया क्या नहीं किया. तो भाई इतना टाइम नहीं है कि मैं कर सकूँ. मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ चेयरपर्सन से कि यार अगले सेमेस्टर 2 कोर्स सेक्शन से ज्यादा मत देना. Going through 80 assignments, it's hell of a lot. कागज के असाइनमेंट होते हैं ना, वो आदमी, मेरे जैसा आदमी कंफर्टेबली कर लेता है. कंप्यूटर पे काम करना, अभी 1-1.5 घंटे में आंखें दर्द कर रही हैं मेरी, सर में भी दर्द शुरू हो जाएगा. कंप्यूटर स्क्रीन पे काम करना बहुत मुश्किल है मेरे. आई एम नॉट एबल टू फाइंड विंडोज ऑफ टाइम कि मैं आज फलाना असाइनमेंट देख लूँ, आज फलाना कुछ देख लूँ और उसको मार्किंग कर दूँ. तो हाँ, कुछ कह रही थी. कह रही थी कि अगर आपको कोई हेल्प की जरूरत हो तो आप हाँ, बता तुम लोग खुद ही देगा. हम क्विज चेक करके दीजिए करो. मैंने तुम्हें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन दे दिया ना, तुम अपने मार्क्स लगा के खुद ही दे जी दो. सर सबके 5 आउट ऑफ 5. हैं? सबके सबके 5 आउट ऑफ 10. आउट ऑफ 5 सर. 5 आउट ऑफ 5 नहीं, 10 पॉइंट्स का है. बल्कि लास्ट असाइनमेंट क्विज जो था वो 20 पॉइंट्स का था. लेकिन वो 20 पॉइंट्स विल बी कर्टेल्ड डाउन फॉर ओवरऑल सर, इवैल्यूएशन. जो आपने सॉल्यूशन दिया था उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन था मेरे हाँ, पास. बोलो. जब वो जो बी स्प्लाइन कर्व हाँ, होता है उसके लिए डेटा पॉइंट्स को ऑर्डर में होना जरूरी है ड्रॉ करने से पहले, क्योंकि मैंने देखो नहीं बात ऑर्डर सुनो, में किया. देखो बात सुनो. कुछ जी जी चीजें सर. ड्यूरिंग टीचिंग प्रोसेस हम स्किप करते हैं, जानबूझ के स्किप करते हैं, कभी बगैर जाने बूझे स्किप हो जाता है. एंड दैट इज टू बी टेस्टेड कि किस बच्चे ने पकड़ा है, किसने नहीं पकड़ा. बल्कि इस पे तो डिस्कशन हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप पे, और मैंने कहा है आखिरी 1-2 घंटे के अंदर कि पॉइंट्स जो है दे हैव टू बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्स. अच्छा, अगर नहीं किया तो अब क्या शक्ल बनी उसकी. तो जाहिर है कि जो एक्चुअल, थोड़ा ऊपर. हाँ, उल्टा हो गया ना वो. यानी जो जी इसका जो एक्चुअल विद ऑर्डर जो बी स्प्लाइन बना था वो ऊपर की तरफ कॉन्केविटी थी उसकी, कॉन्केव अप था. और जो जी. जो आपने ओरिजिनल ऑर्डर में बनाया वो कॉन्केव डाउन था. इसी तरह का जी था जी ना. सर. हाँ, तो ठीक है. बात ये, 2 एस्पेक्ट थे बी स्प्लाइन टेस्ट करने के. एक एस्पेक्ट तो ये था कि तुम पॉइंट्स को किस तरह से इस्तेमाल करते हो. दूसरा एस्पेक्ट ये था कि तुम फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट किस तरह से करते हो, भले से एक्सेल शीट में करो. ठीक है. अब फिजिकल एग्जाम में याददाश्त नहीं, मैं जितने भी बड़े फॉर्मूले लंबे चौड़े होते हैं फिजिकल एग्जाम में दे देता हूँ. बिकॉज तुम्हारी याददाश्त का इम्तिहान नहीं, तुम्हें इसको इस्तेमाल करना है. कैन यू यूज इट. और फिजिकल एग्जाम में कभी मैं 4 पॉइंट से ज़्यादा नहीं दूंगा. लेकिन अगर फिजिकल एग्जाम नहीं होता तो हो सकता है मैं तुम्हें 6 पॉइंट दूँ, तो मैं 3 क्यूबिक स्प्लाइन 20 स्प्लाइन बनाना पड़े, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एनीवेज, और कोई सवाल? नहीं सर, थैंक यू. थैंक यू. देन आई टर्मिनेट द सेशन. लेकिन सर हाँ, एक बोलो और चीज बोलो. सर, सॉरी आप कह रहे हैं कि आप असाइनमेंट अभी वीकेंड पे देंगे, ये वीकेंड तक देंगे? आज कोशिश करूंगा आज रात को बना लूं, दैट यू हैव टू सबमिट बाय नेक्स्ट मंडे और संडे. ओके, ठीक है, थैंक यू सर. और दैट विल बी, अगर मतलब मेरे जहन में है कि मैं वीकली असाइनमेंट दूं अब अगले 3 हफ्ते, कम से कम 3 सर सर क्यों सर? टू मिनिमाइज द फाइनल एग्जाम.
सर लेंथ better. बस तो छोटी रख लेगा हाँ बहुत। सर, फिर क्वेश्चंस अच्छा। थोड़े से कम कर देगा प्लीज, क्योंकि नहीं आजकल देखो बात प्रोजेक्ट्स सुनो, वगैरह भी बहुत देख फिर वही बात, आजकल प्रोजेक्ट मैंने कुछ सर अर्सा वही पाकिस्तान के एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में गुजारा था जिसका आजकल नाम है पियास। दैट वाज कॉल्ड सेंटर फॉर न्यूक्लियर स्टडीज, नेलोर में था वो, सिर्फ पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का, जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी की वो फेलोशिप, एमएस फेलोशिप होती। हर सब्जेक्ट का टीचर 5-5 6 सब्जेक्ट होते थे। हर वीकेंड यानी 2 दिन की छुट्टी होती थी वहाँ पे। दैट वाज द टाइम व्हेन इट वाज आई थिंक फ्राइडे सैटरडे छुट्टी होती थी। तो थर्सडे की शाम तक हर सब्जेक्ट के टीचर एक असाइनमेंट दे देता था और कहता था कि संडे मॉर्निंग यानी फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक तुमने असाइनमेंट सबमिट करना है। तो हम लोग अक्सर टीचर से मजाक करते थे कि सर ये वीकेंड तक छुट्टी क्यों दी जाती है? तो वो हंसते थे कि इसीलिए दी जाती है कि तुम लोग काम करो। तो वी नेवर हैड एनी वीकेंड जिस पे कि हम तफरीह कर सकें। तो बात ये है कि to be a top-notch institution, you have to keep your standards high. Or keep your standards high, that means students are taught at the best, with the best possible skill, and students respond with the best possible skill. तुम लोग जब एडमिशन हुआ है तुम्हारा सीएस के है ना तुम लोग, यस सर। कितने का बैच CS आया था, इनटेक हुआ था? सर 100 से तो ऊपर थे। यस सर, 100 से ऊपर थे। यस आउट ऑफ 2-3 हजार तो थे। यस सर। जी सर 3 हजार। आराम से। तो 3 हजार में से तुम टॉप के 100 लोग हो, तो तुम्हें प्रूव भी तो करना है कि तुम टॉप के 100 लोग हो, वरना हमारा सिलेक्शन एक दफा कर दिया ना वरना हमारा सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो डाउट में पड़ जाएगा। ठीक है, ओके, अपना ख्याल रखना, मेरे लिए दुआ करना। लेट मी फर्स्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग।